Hello students, this is the third lecture of what is democracy and why democracy. Students, we have already discussed about the features of democracy, but just two features we have discussed. अभी दो features हमें discuss करने बाकी हैं. Students, हमने जो पहले दो feature discuss किए, मैं उसको एक बार जल्दी से recall करती हूँ. First one was the major decisions must be taken by the elected leaders. पहला जो हमारा फीचर था वो था कि जो मेजर डिसीजंस होने चाहिए एक गवर्नमेंट में, एक डेमोक्रेसी में, वो इलेक्टेड लीडर्स ही लें. ठीक है. दूसरा हमारा जो फीचर था वो था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाए. नाउ आवर थर्ड फीचर इज द वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. One person, one vote and one value. A true democracy grants its citizens what is called universal adult franchising. I hope all of you are very well aware of this term, universal adult franchising. It means all the adults have a right to vote without any discrimination based on sex, color, race, caste or class. As we know that a universal adult franchisee, it means everyone, every citizen of the country who is adult, who is at least adult, has the right to vote. And each person can cast one vote. All votes are counted and the person who gets the maximum number of votes get elected. We know that when universal adult franchisee is there, then what happened? Each person can cast one vote. All the votes are equal. All the votes are having the same value. And when the votes are counted, the person who is getting the maximum number of votes, he is known as elected. So this was our third feature: one person, one vote, and one value. यानी स्टूडेंट्स, एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, यानी जो भी एडल्ट है उस कंट्री का सिटीजन, उससे राइट टू वोट मिल जाता है और वो अपना वोट दे सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. एंड इन वोट्स को बाद में, इन सभी वोट्स का इक्वल वैल्यू होता है. इन्हें काउंट करने के बाद से जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको हम इलेक्टेड मानते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल्स ऑफ लॉ एंड respect for rights. Rule of law and respect for right. In a democracy, the state should respect some basic rights of the citizens. And we know that in a democracy, citizens have so many types of rights, like right to speech, right to freedom, right to expression. Okay, so maximum numbers of rights are there. So in a democracy, the state should respect them. And they should be free to think, to have opportunities. Who should be? The citizens. The citizens should be free to think, to have opportunities, to have opinions, to express views in public, to form associations, and to protest and take other political actions also. Everyone should be equal in the eyes of law. That is the most important thing. Everyone, whether he is a common man, is an ordinary man, or an officer, or the prime minister, they all are equal in the eye of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone, by the government also. In a democratic government, yes students, a democratic government always must be follow. A democratic government must follow the rules, must follow the laws. No, laws are not only for the ordinary people. The laws are also for the government. A democracy government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules also. So students, this was the fourth feature. I would like to explain it in Hindi in short also, that डेमोक्रेसी में रूल्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए. ठीक है, डेमोक्रेसी में जो रूल होता है, जो शासन होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, यानी कानून के अकॉर्डिंग हो. कानून ऐसा हो जो सबके लिए बराबर हो, एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी. ठीक है,
एक जुडिशरी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो कि जो पीपल्स के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। पीपल के राइट का, सिटीजन्स के राइट का रेस्पेक्ट स्टेट को भी करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फीचर्स, these were the features of democracy. Once again, I would like to repeat it. First feature was the major decisions are taken by the elected leaders. Second was democracy must be based on free and fair election. Third was the one person, one vote, and one value. And the fourth feature was the rule of law and respect for rights. Okay, so these were the features of democracy. So, students, after this, we are starting the next topic. As we have already studied that what is democracy, हम जान चुके हैं कि democracy क्या है. And now the topic is why democracy. Democracy क्यों? Okay. So students, first of all we will have the arguments. हम लोग arguments देखेंगे पहले, और arguments हम कैसे देखेंगे? फेवर में भी देखेंगे, अगेंस्ट में भी देखेंगे. किसके? डेमोक्रेसी के. So first we will learn that what are the arguments against democracy. डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं, हम पहले वो देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी. लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी एंड दस लीड्स इन स्टेबिलिटी. हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हर एक पीरियड के बाद इलेक्शंस होते हैं, एंड इस इलेक्शंस में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव बदलते हैं, लीडर्स बदलते हैं, गवर्नमेंट्स बदलती हैं. तो इससे क्या होता है? एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है. अब आप देखो, एक गवर्नमेंट है जो हमारे यहाँ काम कर रही है, उसने बहुत सारे प्लान्स लॉन्च किए, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए, बहुत सारे प्लान वो काम कर रही है. फिर उसका टाइमिंग, उसका जब टर्म पूरा होता है, फिर इलेक्शंस होते हैं, और वो गवर्नमेंट फिर इलेक्शन नहीं जीत पाती, वो पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाती, और किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनती है. अब ये नई गवर्नमेंट क्या करती है? पुरानी गवर्नमेंट के सारे प्लान्स को बंद कर देती है. यानी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं रह पाता है कोई प्लान. लोगों के वेलफेयर के लिए प्लान चल रहा है, लोगों के लिए काम चल रहा है, हर एक पार्टी अपनी पॉलिसीज अपने तरीकों से काम करती है. दैट्स वाई डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है. ठीक है. सेकेंड आर्गुमेंट क्या है स्टूडेंट्स? कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. डेमोक्रेसी पूरी तरीके से इलेक्टोरल कंपटीशन पे, पॉलिटिकल कंपटीशन पे बेस्ड है, और यहाँ पूरा का पूरा पावर का गेम होता है कि कौन ज़्यादा वोट्स ले लेता है, कौन जो जितना पावरफुल होगा उतने ज़्यादा वोट्स लेगा, ऐसा सोचा जाता है यहाँ पे. दैट्स वाई मॉरलिटी जो होती है ना, उसका कोई स्कोप नहीं होता है. अब ये मॉरलिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी बात को, किसी काम को उचित अनुचित का विचार करके करते हैं, यानी अच्छे बुरे का सोच समझ के ये करना ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सोच के करते हैं, तो उसको कहते हैं मॉरलिटी. अब जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं अगर इलेक्शन लड़ रही हूँ, ठीक है, और मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, और मैं अभी अपोजिशन में हूँ, मैं वापस से फिर से इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी. गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है. अब मुझे तो इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मैं अब ये सोचूं कि ये गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, तो क्या मैं अपने चुनाव प्रचार में जाके इस गवर्नमेंट की तारीफें करूंगी? नहीं, मैं इसकी कमियां दिखाऊंगी ताकि मुझे भी वोट्स मिले. मैं इसकी कमी दिखा के अपनी बातों को आगे रखूंगी, है ना. तो यहाँ पे मॉरलिटी का स्कोप नहीं है. मैं जानती हूँ कि सामने वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे तो उससे बुरा ही बताना है, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है. ठीक है. सो दिस वॉज द सेकेंड आर्गुमेंट. थर्ड इज the delays are often made because many people have to be consulted in a democracy. हम जानते हैं, हमने देखा भी है what happens in a democratic government कि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है. लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, उसके बाद मीडिया डिस्कशंस. तो इतना सारा लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है ना किसी डिसीजन के लिए, कि कभी कभी एक डिसीजन को आने में कई साल लग जाते हैं. कई तो ऐसे बिल हैं जो कि 10-10 साल के बाद पास हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. अब इलेक्शन जीतने का कंपटीशन है, इस चक्कर में करप्शन भी होता है.
पैसे पे दिए लिए जाते हैं, वोट्स खरीदे जाते हैं, ऑफिसर्स को खरीदने की कोशिशें की जाती है, ठीक है। तो करप्शन भी यहाँ काफ़ी देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी लोग नहीं जानते, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सबको राइट्स है, सबको राइट है वोट देने का। लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान ये नहीं जानता कि उसे किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि उसको खुद अपना ही अच्छा बुरा नहीं पता, उतना अवेयर नहीं है वो, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है। ऐसे में जब वो अपना अच्छा बुरा डिसाइड नहीं कर सकता, तो फिर वोट दे करके वो होल के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, these were the arguments against democracy. नेक्स्ट वीडियो में हम आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी और बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।